Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss linear magnification produced by a spherical mirror and solutions to NCERT text problems 9.1 and 9.2 based on the spherical mirror formula 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F of chapter 9 ray optics and optical instruments for class 12 physics in part 24 of this chapter. First of all, we have to define the linear magnification by a spherical mirror. किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जिसे स्मॉल m सिंबल से डिनोट किया जाता है. सो लिनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय a spherical mirror, small m equals to the ratio of height of the image hi to the height of the object ho equals to image distance, the ratio of image distance to the object distance. Magnification produced by a spherical mirror is also defined as the ratio of image distance small v to the object distance small u. In symbol, we can write a small m equals to hi, where hi is the symbol of image height, that is height of the image, and upon ho is the symbol of the object height, that is height of the object, equals to minus image distance, that is a small v, upon object distance, symbol is a small u. So formula for linear magnification produced by a spherical mirror is a small m equals to hi upon ho equals to minus v upon u in case of both concave mirror and convex mirror. Concave mirror तथा convex mirror, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए मैग्निफिकेशन, लिनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है स्मॉल m इजकल टू hi बाई ho, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज प्रतिबिंब का आकार अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वस्तु का आकार इक्वल्स टू माइनस v इज द सिंबल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी अपॉन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम देख सकते हैं कि कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन की स्थिति में तथा कॉन्वेक्स मिरर से लाइट रेज के रिफ्लेक्शन की स्थिति में दोनों सिचुएशन में मैग्निफिकेशन आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का, लिनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो इक्वेशन नंबर 1 में ऑब्टेन किया गया, या दोनों के लिए कैसे इक्वल है. तो फॉर लेट अस सी फॉर the reflection at a concave mirror we have, for a concave mirror के केस में ऑब्जेक्ट का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है इन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन की सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ए बी का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है उसी साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू द कॉन्केव मिरर. चूँकि ऑब्जेक्ट का इमेज ए बी का इमेज ए डैश बी डैश इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड इमेज उल्टा प्रतिबिंब रियल होता है, वास्तविक होता है. तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन बाय ए कॉन्केव mirror is height of the image is negative according to the sign convention, क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस px के नीचे है, डाउनवर्ड है वर्टिकल डायरेक्शन में. सो ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड above the principal axis are taken as positive and those measured below the principal axis are taken as negative. Therefore image distance, image height of the image hi is negative minus hi upon height of the object is above the principal axis, so it is positive
according to the sign convention. लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, एबव है, इसलिए न्यू साइन कन्वेंशन से, नई चिन्ह परिपाटी से वह धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा. दैट इज माइनस एच आई, इमेज हाइट इज नेगेटिव बिकॉज इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पॉजिटिव. सो प्लस एच ओ इक्वल्स टू image distance and object distance both are measured left to the pole of the concave mirror. So both distances are taken as, both distances, that is image distance and object distance are taken as negative. तो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन की स्थिति में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कॉन्केव मिरर के लेफ्ट में फॉर्म होता है. तो उस सिचुएशन में जो कि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है उसके अपोजिट है, इसलिए दोनों डिस्टेंसेस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तथा इमेज डिस्टेंस दोनों निगेटिव होगा. सो इट इज माइनस वी अपॉन माइनस यू, माइनस एंड माइनस in the numerator and denominator will cancel out. So the formula is, we can write it, m is equal to minus hi upon ho is equal to v by u. इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं hi अपॉन m is equal to hi अपॉन ho equals to minus v upon u. So this is the formula for magnification for a produced by a concave mirror which is same as which is same to that of equation 1 which we have defined, which we have expressed earlier. So it is equation number 2 and this equation 2 is same to that of equation 1. Now for reflection at a convex mirror, अब किसी कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन की स्थिति में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो इमेज फॉर्म होता है वह वर्चुअल होता है तथा इरेक्ट होता है तथा डिमिनिश्ड होता है. ऑब्जेक्ट ए बी से छोटा है, ए डैश बी डैश, तथा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म होता है. तो किसी कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का लाइट रेज के रिफ्लेक्शन के कारण इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के पीछे, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, एंड इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल. तथा इमेज ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट ए बी के रेस्पेक्ट में इरेक्ट है, सीधा है, एंड इरेक्ट इमेज वर्चुअल इमेज होता है तथा आभासी वर्चुअल है, आभासी या काल्पनिक है, तथा ऑब्जेक्ट ए बी से छोटा है, ए डैश बी डैश. इसलिए इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट दोनों both are above the principal axis, above the vertical upward direction. So both distances AB, object distance, object height and image height, both are taken as both will be taken as positive. So for reflection at a convex mirror, उत्तल दर्पण से परावर्तन की स्थिति में लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज स्मॉल m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज hi इज पॉजिटिव, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज ऑल्सो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्जेक्ट भी तथा इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश के ऊपर है, एबव है, इसलिए दोनों डिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा. एंड इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस तो फॉर्म हुआ है, इमेज फॉर्म हुआ है पोल तथा फोकस के बीच में कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर. तो यह डिस्टेंस पोल से राइट में है, पोल के कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के पोल ध्रुव से दाईं ओर है. यह डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस पी ए डैश, इसलिए इमेज डिस्टेंस जिसे भी सिंबल से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, वह पॉजिटिव होगा. तो प्लस भी इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, बट ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट टू द ऑब्जेक्ट ए बी इज लेफ्ट टू द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. लेकिन ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण का पोल ध्रुव के लेफ्ट साइड में है, बाईं ओर है, इसलिए यह डिस्टेंस निगेटिव होगा. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज निगेटिव माइनस यू. सो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज स्मॉल m इक्वल टू प्लस hi अपॉन प्लस ho इक्वल टू प्लस u अपॉन माइनस u. देयरफॉर द फार्मूला इज द सेम एज दैट ऑफ गिवन बाय इन इक्वेशन 1. m इक्वल टू hi अपॉन ho इक्वल्स टू minus v upon u. Thus it is clear that in both cases, that is for reflection at a concave mirror and that of a convex mirror, the formula of reflection is m is equal to
height of the image hi upon height of the object ho equals to minus image distance v upon object distance u. Now solutions to NCERT text problems 9.1 and 9.2. First of all, problem number 9.1. A small candle 2.5 cm in size is placed 27 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 36 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive a sharp image on the screen? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? 2.5 cm साइज का एक छोटा कैंडल है, स्मॉल कैंडल है, जिसे 36 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या का एक कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। एक स्क्रीन पर्दा को कनकेव मिरर से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि उस कैंडल के इमेज का उस कैंडल का शार्प इमेज स्पष्ट प्रतिबिंब उस स्क्रीन पर्दा पर बन सके। यदि कैंडल को मिरर के नज़दीक लाया जाए तो उस स्थिति में स्क्रीन को किस ढंग से मूव किया जाएगा, खिसकाया जाएगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। साइज ऑफ द कैंडल इज गिवन, that is HO equals to 2.5 cm and height of the candle is taken to be positive because objects are kept above the principal axis of a spherical mirror or a lens. So height of the object को पॉजिटिव लिया जाएगा प्लस 2.5 cm, चूँकि यह प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है, एबव रखा गया है। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर आर इक्वल्स टू -36 cm, चूँकि ऑब्जेक्ट को डैट इज स्मॉल कैंडल को कनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में रखा गया है, इसलिए न्यू साइन कन्वेंशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा -36 cm। देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ इजकल टू r/2 दैट इज -36/2 दैट इज -18 cm। हम लोगों को मालूम करना है साइज ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और कनकेव मिरर से स्क्रीन पर्दे की दूरी कितनी होगी जिस पर कि प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। इमेज डिस्टेंस भी मालूम करना है, v इजकल टू वाट एंड HI हाइट ऑफ द इमेज इजकल टू वाट, ये भी मालूम करना है। तथा इमेज का नेचर, प्रकृति भी मालूम करनी है। नाउ यूजिंग द मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इजकल टू 1/f, चूँकि हम लोगों को भी मालूम करना है, इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, कनकेव मिरर से स्क्रीन का डिस्टेंस मालूम करना है, इसलिए इस इक्वेशन से, इस मिरर इक्वेशन से 1/v + 1/u इजकल टू 1/f से 1/v टर्म को एलिमिनेट कर दिया जाए। इसलिए 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, 1/u टर्म को LHS से RHS में लाने पर निगेटिव होगा, और 1/v इक्वल्स टू 1/f फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज -18 cm, that is -18 minus 1/u. u is given 27 centimeter. u object distance, that is distance of the candle from the concave mirror. concave mirror से कैंडल का डिस्टेंस कितना दिया है 27 cm. u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u सिंबल से डिनोट करते हैं, तो u इज इक्वल टू -27 cm. so u is equal to -27 and it is -1/18 plus 1/27. now LCM of 18 and 27 is 54. therefore in RHS, in the denominator, it is 54, and it is after dividing 54 by 18, it is 3 multiplied by 1 is 3, that is 3 multiplied by 1 is 3, and it is negative, so -3 plus 54 divided by 27 is 2,
So 2 into 1 is in the numerator, in the numerator it is 2, that is 2 minus 3 in the numerator. Now we have minus 3 plus 2 upon 54. So 2 minus 3 is minus 1 upon 54. Sorry. Therefore, V equals to minus 54 cm. That is distance of the screen or image distance from the concave mirror is 54 सेंटीमीटर. concave mirror से स्क्रीन को 54 सेंटीमीटर पर रखना होगा और निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि concave mirror के लेफ्ट साइड में रखना होगा, जहाँ की जिस स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का दैट इज कैंडल का क्लियर इमेज दैट इज ब्राइट इमेज या शार्प इमेज दैट इज स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द image. So using the formula of magnification, m equals to hi upon ho equals to minus v upon u. Therefore hi, height of the image, is equal to minus v upon u multiplied by ho equals to minus v is minus 54 cm, image distance or distance of the screen from the concave mirror is minus 54 cm. u is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, कैंडल को 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है concave mirror से, तो इट इज minus 27 मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2.5 cm. नाउ minus and minus inside the bracket in the numerator and denominator will cancel out. So it is, and 27 times 2 is 54. So 54 is cancel out by 27 and we will left with 2. So 2 into 2.5 it is 5, that is hi is equal to 5.0, that is minus 5.0 cm, that is minus 5 cm, and therefore height of the image is 5 cm, and minus sign indicates that it is below the principal axis. So nature of the image is nature of the image is real and inverted. So nature of the image is real and inverted. Now in the last part of this problem is, if the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to move? जब कैंडल को मिरर के कनकेव मिरर के क्लोजर नज़दीक लाया जाएगा तो स्क्रीन को किस ढंग से खिसकाना होगा. तो जब कैंडल को कनकेव मिरर के नज़दीक लाएंगे तो इमेज उसका शिफ्ट होगा, कनकेव मिरर से दूर शिफ्ट होता जाएगा. सो स्क्रीन विल स्क्रीन विल हैव टू मूव फार्दर एंड फार्दर फ्रॉम द कनकेव मिरर. तो उस सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट को कैंडल को कनकेव मिरर के नज़दीक लाएंगे, कनकेव मिरर की ओर लाएंगे, तो चूँकि इमेज शिफ्ट होता जाएगा कनकेव मिरर से दूर इन्फिनिटी की ओर, तो उस सिचुएशन में स्क्रीन को कनकेव मिरर से फार्दर एंड फार्दर मूव कराना होगा. और जब कैंडल को कनकेव मिरर का फोकस तथा पोल के बीच लाया जाएगा तो उस सिचुएशन में इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द कनकेव मिरर, which cannot be obtained on the screen. So nature of the image is real and inverted, and the screen should move farther and farther away from the concave mirror. Write down the screen should move farther and farther from the concave mirror. Concave mirror if the candle is moved closer to the mirror. Now problem number 9.2. A 4.5 cm needle is placed 12 cm away from a convex mirror of focal length 15 cm. Give the location of the image and magnification.
describe what happens as the needle is moved farther from the mirror. 4.5 cm साइज का एक निडल है, सुई है, जिसे 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर डिस्टेंस पर रखा जाता है। इमेज का प्रतिबिंब का लोकेशन, स्थिति या दूरी तथा प्रतिबिंब का आकार, साइज ऑफ द इमेज मालूम करना है तथा यह बताना है कि उस सिचुएशन में, उस स्थिति में क्या होगा जब निडल को, सुई को मिरर से दूर ले जाया जाएगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। साइज ऑफ द निडल, दैट इज साइज ऑफ द और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार जो कि सुई है वह कितना है, 4.5 cm है, दैट इज HO, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लस 4.5 cm एंड डिस्टेंस ऑफ दिस निडल फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से निडल का डिस्टेंस कितना है, U इज इक्वल टू -12 cm। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ f, स्मॉल f इक्वल्स टू 15 cm। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सो f, स्मॉल f इक्वल टू प्लस 15 cm। नाउ वी हैव टू फाइंड image distance v is equal to what and height of the image hi is equal to what, using the mirror formula 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, therefore 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u। 1 by u को LHS से RHS में ले जाने पर नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u। now putting the values of uv and putting the values of u and f, we have to find v, so putting the values of u and v in this equation, we have 1 by v equals to 1 by f which is plus 15 minus 1 by u is -12, that is 1 by 15 plus 1 by 12। now LCM of 15 and 12 is 60। अब 15 से 60 में डिवाइड करने पर 4 होगा और 4 इंटू 1, तो न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में 4 इंटू 1 दैट इज 4, प्लस 12 से 60 में डिवाइड किया जाए तो 5 आएगा और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5, दैट इज 5 प्लस 4 इन द न्यूमरेटर 9/60, देयरफॉर दैट इज 1 by v equals to 1 by v equals to 9/60, therefore v is equal to plus 60 by 9, and it is 20/3 after cancellation, so v is equal to plus 20/3 cm, that is 20 में 3 से डिवाइड करने पर 6.666, that is 6.67 cm, एंड अगर इसको डिसमल के एक प्लेस तक राउंडिंग ऑफ किया जाए तो इसे लिखा जा सकता है 6.67 cm को 6.7 cm, 6.7 cm इज द इमेज डिस्टेंस। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण से प्लस 6.7 cm, दैट इज प्लस साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। भी का पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक मान, यह दर्शाता है कि इमेज प्रतिबिंब कॉन्वेक्स मिरर से पीछे बनेगा 6.7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। अब इमेज का हाइट, इमेज का आकार क्या होगा वह मालूम करना है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया जाए, m इक्वल टू HI/HO इक्वल्स टू -V/U, एंड देयरफॉर HI इक्वल टू, HI हमें मालूम करना है। HI किसका सिंबल है, हाइट ऑफ द इमेज का, प्रतिबिंब के आकार का संकेत है, प्रतिबिंब का आकार का संकेत है HI। देयरफॉर HI इक्वल्स टू -V/U मल्टीप्लाइड बाई HO, एंड इट इज इक्वल टू माइनस एंड V इज प्लस 20/3 cm। अभी हम लोगों ने ऑब्टेन किया इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी को, तो V इज प्लस 20/3 मल्टीप्लाइड बाई U इज,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -12 cm, दैट इज -12 कॉन्वेक्स मिरर से माइनस उत्तल दर्पण से -12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर निडल को रखा जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट है, सुई को रखा जाता है, मल्टीप्लाइड बाई HO. So U is -12 in the denominator and HO, height of the object, is 4.5. Now after cancellation, 20/12, that is 20/12, that is 5/4 से कैंसिल होकर के 25 बचेगा और 4 से 12 कैंसिल होकर के 3, दैट इज माइनस, अंदर में भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है और मैग्निफिकेशन का फार्मूला में अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 5 in the denominator it is 3 into 3, 3 into 3 is 9, 5/9 multiplied by 4.5 and 9 से 4.5 भी कैंसिल होकर के 0.5 that is 5 into 0.5 is 2.5 cm, that is height of the image is 2.5 cm. Plus sign indicates that the image is formed above the principal axis. इसलिए इमेज का जो प्रतिबिंब का जो आकार है वह कितना है, हाइट है 2.5 cm है, पॉजिटिव है। इससे यह इंडिकेट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर के उत्तल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तथा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। 4.5 cm निडल का साइज है ऑब्जेक्ट का, लेकिन इमेज का साइज उसके इमेज का साइज 2.5 cm यहाँ पर ऑब्टेन हुआ। तो इसलिए इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है तथा वर्चुअल इमेज है, चूँकि वर्चुअल इमेज जो इमेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में यह इमेज सीधा है, इरेक्ट है, इसलिए वर्चुअल इमेज है तथा कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड फॉर्म होता है। तो यह आंसर हो गया, हाइट ऑफ द इमेज इजकल टू प्लस 2.5 cm एंड इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी भी इजकल टू प्लस 6.67 cm, दैट इज प्लस 6.7 cm। अब इस प्रॉब्लम के लास्ट में यह पूछा गया है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। यदि निडल को कॉन्वेक्स मिरर से दूर ले जाया जाए, दूर मूव कराया जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। सो द इमेज will be shifted towards the focus. In that case, the image will be shifted towards the focus of the convex mirror and it goes diminishing. मतलब इमेज का साइज जो है घटते जाएगा और इमेज फोकस की तरफ मूव करेगा। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट of this problem, that is write down the image goes on, the size of the image goes on decreasing, घटता जाएगा इमेज का साइज and will be moved towards the focus, will be moved towards the focus. Now this video is completed and also the chapter, the topic reflection of light is also completed. Chapter 9 class 12 physics का chapter 9 that is ray optics and optical instruments का topic reflection of light से related topics अब इस वीडियो के साथ ही समाप्त होता है तथा क्लास 12 फिजिक्स के 12 के CBSE 12 बोर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऑल 14 चैप्टर्स 1 to 14 का भी सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल द्वारा अब समाप्त किया जाता है। अब केवल CBSE बोर्ड 12th CBSE बोर्ड के सिलेबस का फिजिक्स का अब केवल जिन चैप्टर्स में NCERT टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं किए गए हैं उनके सॉल्यूशंस का वीडियोज तथा प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट में
और इन फ्यूचर जो एग्जामिनेशंस होंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स तथा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के वीडियोज भी अपलोड किए जाएंगे। 12th स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस का चैप्टर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम को इंग्लिश मीडियम में उसके वीडियोज अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं। इसके अलावा चैप्टर 9 एंड 10 रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स तथा चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी ट्रांजिस्टर तथा लॉजिक गेट्स के वीडियोज बनाने बाकी हैं 12th स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस का। बाकी 12 CBSE बोर्ड के जितने भी टॉपिक्स ऑल 14 चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वे सभी 12th स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में शामिल हैं। हिंदी मीडियम में क्लास 12 फिजिक्स स्टेट बोर्ड्स का चैप्टर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम के वीडियोज अपलोड किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।